आज के पॉडकास्ट का हमारा गेस्ट है पुरु खिलारी। तो पुरु की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो जिनको नहीं पता, इन द लास्ट 2 to 3 years ही हैज़ प्रोग्रेस अ लॉट और उसने काफ़ी सारे अल्ट्रा साइकिलिंग रेसेस में पार्टिसिपेट किया है। तो इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उसकी जर्नी के बारे में, अबाउट हिज न्यूट्रिशन, अबाउट हिज ट्रेनिंग, अबाउट स्पॉन्सरशिप एज एन एथलीट, about why he took up running as a sport, about strength training and much much more. So काफ़ी इंस्पायरिंग पॉडकास्ट है. So without any further delay, let's get started. Let me introduce you to Puru. So Puru का first SR series he did it in 2020. Then in 2021 he did the Deccan Cliffhanger where he qualified for race across America, which is 32 hours में he did 645 kilometers. उसके बाद in 2022 he participated in the Great Himalayan Ultra, which is a supported race in Jammu, Leh Ladakh, and over there he came first. And then in next year 2023 he participated in the Ultra Spice race, which is 1750 kilometers, where he stood second. And then in 2023 itself, in November, he participated in the self-supported version of Deccan Cliffhanger, where he came second. And then recently, just few days back, उसने he participated in the Tata Mumbai Marathon, which is the half marathon, and he finished in 1.5 hours or even lesser timing, which is a very good timing अगर आप रनिंग करते हो तो आपको पता होगा. So आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे पुरु के बारे में कि what is his lifestyle like, कि how has he progressed वो फर्स्ट SR सीरीज से till recently the Deccan Cliffhanger win and then the Tata Mumbai Marathon. His whole journey हम उसके बारे में जानेंगे कि how has he progressed, what has he done, and overall we'll get to know him better, that and how you can also maybe follow his footsteps and get inspired to chase your own dreams. So thank you, Anish, for making me a part of the first series, the first episode of your podcast. तो Yes. जैसे तुमने Uh, कहा मेरे जर्नी के बारे में, that has been exactly on point. So without any further ado, I am ready for any of the questions that you have. okay, great. So सबसे पहले I want to know about your journey कि अभी you started in 2020. Okay, means before that also तुम cycling कर रहे थे, but 2020 में the moment you did the first SR series. So from there till, let's say, only cycling if we take, then Deccan Cliffhanger self-supported तक, how have you progressed? What did you do differently? What kind of training have you incorporated? For SR series, how did you train? And then recently for Deccan Cliffhanger, training कैसे था? So कैसे changes हुए इन 3 सालों में? So you can take us through your journey in the last 3 years. यस, मेरा पहला इंट्रोडक्शन अल्ट्रा साइकिलिंग को एसआर सीरीज से चालू हुआ. तो एसआर सीरीज करने के पीछे मेरा सबसे बेसिक गोल था, वो करने का ये एक स्टेपिंग स्टोन था ताकि मैं डेक्कन क्लिफहैंगर रेस कर सकूं. ये 2019 की बात है कि जब मुझे डेक्कन क्लिफहैंगर के बारे में पता चला. पर वो टाइम पे मेरा साइकिलिंग बस कम्यूट, जैसे कॉलेज जाना होता था, ये सब में ही मेरा साइकिलिंग होता था. फिर उसके बाद में 2020 का जो कैलेंडर ईयर है, 2020 टू 2021, ये कैलेंडर ईयर के बीच में मैंने मेरा एसआर सीरीज का स्टार्ट डायरेक्टली 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, डायरेक्टली 600 किलोमीटर से स्टार्ट किया. एंड इट वाज अ वेरी बिग रिस्की मूव. पर ये मैंने ऐसे सोच के किया था कि जो रूट था मुंबई से धुले एंड बैक टू मुंबई, तो मेरा जो मामा का गांव है विच इज इन नासिक, सो वो 150 किलोमीटर के इस पे ही था. तो अगर मुझे उसके पहले मेरा लॉन्गेस्ट हैज बिन 150 किलोमीटर, तो मुझे पता था 150 तो होने वाला है, आगे का 300 में भी धुले पहुंच जाऊंगा. वहां पे तो नाइट हॉल्ट था ही. उसके बाद में वापस 150 की बात है तो नासिक तक पहुंचूंगा. अगर कुछ लगे कि नहीं कंप्लीट होने वाला है कुछ भी, तो मामा के यहाँ पे रेस्ट करूंगा, 2-4 दिन फिर निकल के आऊंगा. और अगर वो नहीं हुआ तो कोई तो टेम्पो या ट्रक को हाथ दिखाऊंगा और वहां से कैसे ही करके घर पहुंच जाऊंगा. तो मैं फर्स्ट एसआर सीरीज का जो जर्नी है वो 600 से चालू हुआ. फिर बाद में हार्डेस्ट पार्ट जो है वो तो होने के बाद में फिर एक एक छोटा छोटे जो मतलब जो पार्ट्स बाकी रहे, जैसे 200, 300, और सबसे एंड में मेरा 400 का बीआरएम हुआ. अभी
बात हुई जैसे मेरी जर्नी की, तो 600 का करने का मैंने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मैंने क्लाइंबिंग का प्रैक्टिस एक अच्छा खासा करके रखा था। तो प्रायर टू दैट मेरा प्रैक्टिस ऐसा था कि माथेरान का मैं एक लूप पूरा बराबर से कर सकता था। लोनावला का जो भोरघाट है उसका 2 लूप का मेरा प्रैक्टिस मैंने करके रखा था। और जहां तक बात आई येऊर हिल्स की, तो वहां पे मेरे 8 लूप्स का 8 लूप का प्रैक्टिस था। तो मुझे अपहिल एज अ चैलेंज वैसा मेरे दिमाग में था ही नहीं कि कितना भी अपहिल आए मैं संभाल सक पाऊंगा। ऐसा मैंने मेरा माइंडसेट बना के रखा था, कि जिसने मुझे ये बीआरएम में काफी ज्यादा हेल्प किया। और हुई ये एसआर सीरीज की बाद में का जो स्टेपिंग स्टोन मुझे लेना था डेक्कन क्लिफ हैंगर का, तो मेरा फर्स्ट अल्ट्रा रेस में अनिश भी मेरा क्रू का एक पार्ट था, कि जहाँ पे ये तो काफी एडवेंचरस राइड थी हमारे लिए। पर मैं काफी फॉर्चुनेट इनफ हूँ नवी मुंबई में रहने की वजह से। यहाँ पे काफी सारे अल्ट्रा साइकिलिस्ट हैं। तो कपिल शर्मा हुए, फिर कबीर रचूरे, और ओवरऑल कपिल का पूरा जो क्रू है उसमें अजय, नितिन सर, ये सारे काफी मुझे हेल्पफुल रहे। और इवन देखा गया तो वरुण धीमन, अ, वरुण और उसके क्रू से भी मैंने काफी सारे एक्सपीरियंसेस लिए उनके जो जो सेशन थे मैंने सारे अटेंड किए थे, कि कैसे क्रू रेडी होना चाहिए, राइडर कैसा रेडी होना चाहिए। तो रेसेस के ये डेक्कन क्लिफ हैंगर के पहले के मेरे राइड्स भी क्रू सपोर्टेड मैंने वेल बिफोर टाइम किए थे। तो नाइट राइड भी उसमें प्रैक्टिस किया। और ये रेस तो एक अच्छा रहा, पर ये मेरे पूरा जर्नी आज तक का है, उसमें अगर कोई रेस को मैं बैक इन टाइम जा सका जहाँ पे मैं मेरे पूरे जर्नी में कहीं इम्प्रोवाइज अगर मैं कर पाया, तो वो मेरा पहला 600 के बीआरएम से होगा, जिसके बारे में मैं बाद में ऑफ कोर्स बताऊंगा जैसे हम पॉडकास्ट में आगे आगे जाएंगे। और ये जो डेक्कन क्लिफ हैंगर मैंने फर्स्ट टाइम किया था, वो मेरा 31 आवर्स एंड 47 मिनट्स या उसके ही करीब में हुआ था। तो एकदम काफी कट टू कट हुआ था, कि जिसमें मैं बहुत लकी रहा हूँ कि फर्स्ट अल्ट्रा रेस मेरा डीएनएफ, मतलब लेट फिनिश होते होते ही मैं बचा हूँ। एंड में काफी सारे किस्से एक एक होने की वजह से। फिर इसके बाद में ये रेस होने के बाद में फिर मैंने सोचा, मैंने देखा भी था कि और भी अल्ट्रा रेसेस यहाँ पे है, जैसे कि अल्ट्रा स्पाइस, जिसमें 1200 और 1750 किलोमीटर का कैटेगरी है। अभी के लिए तो फर्स्ट अल्ट्रा रेस के बाद में मेरे लिए तो ये काफी बड़ा स्टेप था, क्योंकि जैसे ही मेरा डेक्कन क्लिफ हैंगर रेस हुआ था, वैसे ही मेरा नी पेन एग्रीवेट हुआ था। तो आपका नी के साइड में जब पेन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो एक आईटी बैंड सिंड्रोम उसे कहते हैं, कि वो फ्रिक्शन के से रिपीटेटिव मूवमेंट जो पेडलिंग का हमारा होता है, आपका एक टेंडन बोन पे रब हो के वो पेन स्टार्ट हो जाता है। जो मेरा ये 600 किलोमीटर पहले बीआरएम के बाद में से जो चालू हुआ था, वो ये डेक्कन क्लिफ हैंगर के रेस के एकदम एंड मोमेंट पे काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तो इससे बाद में मेरे दिमाग में तो 1200 का या 1780 का कोई थॉट था ही नहीं। तो जो रेस मेरे आंखों के सामने था, वो था ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा। और ये रेस हर साल अगस्त के महीने में होता है। तो अभी जैसे ही 2021 के नवंबर में डेक्कन क्लिफ हैंगर खत्म होने के बाद में मेरा अगला टारगेट मैंने सेट करके रखा था, कि मुझे ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा, ये 600 किलोमीटर का रेस है। प्लस जैसे क्लाइंबिंग मुझे पसंद है, क्लाइंबिंग मुझे पसंद है, मतलब क्लाइंबिंग में सफर तो मैं भी करता हूँ, पर एक टाइम के बाद में वो सफरिंग का पेन ही कुछ अलग है। तो मैंने वो रेस का खुद के लिए तैयारी करना चालू किया। फिर जैसे कि वो 600 में 10,350 मीटर एलिवेशन गेन है, तो मैंने सोचा कि व्हाट बेटर वे टू प्रिपेयर देन फॉर दैट रेस, कि हाफ एवरेस्टिंग या तो फुल एवरेस्टिंग करके करूं। तो मैंने वो रेस को तैयार होने के एज अ स्टेपिंग स्टोन मैंने हाफ एवरेस्टिंग भी उसके बीच में किया। फिर बाद में जब बात आई ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा की, तब मैंने खुद को और मेरा एनवायरनमेंट भी आसपास का पूरा इकोसिस्टम ऐसा बनाया, कि जहाँ पे मतलब मुझे मोटिवेशन या फिर मुझे मेरा ज्यादा विल पावर वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, कि कोई भी क्या ट्रेनिंग किया? सेशन को जाना हो मुझे। तो मैंने उस लिए मेरा खुद का विल पावर
ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करने के लिए मैंने तब काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन को इनकलकेट किया। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, और उस चीज़ करने के लिए मुझे रात को जल्दी सोने की भी मैंने आदत लगाई, क्योंकि मेरा जितना भी प्रैक्टिस राइड्स रहे हैं ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा के लिए, उस उसमें सबसे ज़्यादा अपहिल की प्रैक्टिस मैंने की थी। तो वही एक पीरियड ऑफ टाइम है 2022 का, जिसमें मैंने आज तक सबसे ज़्यादा अपहिल ट्रेनिंग किया हुआ है। तो येऊर वाज़ माय सेकंड होम, कि जहाँ पे मेरा कंटीन्यूअस वहाँ पे जाके मेरा प्रैक्टिस एक 4 लूप से लेके ऑल द वे टू 65 लूप्स एक राइड में करना, जो हाफ एवरेस्टिंग का मेरा अटेम्प्ट था। तो वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग हफ्ते में 2 से 3 बार मैं वहाँ पे जाता था। कोई थोड़ा-सा वेरिएशन लाने के लिए मैंने माथेरान में भी कई बार गया था। तो अनीश का भी एक व्लॉग है चैनल पे, हुँ। कि जहाँ पे हम माथेरान गए थे। फिर अगेन बोरघाट होता था। फिर वही समय पे डिंडीगढ़ शिव मंदिर नाम का एक काफ़ी अच्छा स्टीप और डेंजरस क्लाइंब है। तो वहाँ पे भी कई बार जाना हुआ। अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद से उसका कॉम अभी भी मेरा है। तो वो काफ़ी सही रहा, पर क्या पता इन द फ्यूचर शायद से वापस वहाँ पे जाओ, क्योंकि आप एक बार वहाँ पे जाओगे तब आपको समझेगा क्या क्लाइंब क्या चीज़ होता है। तो अ, तो मैंने अपहिल का प्रैक्टिस के लिए मेरा पूरा, जैसे कहा, विल पावर ज़्यादा ना लगे, तो मैंने मेरे हैबिट चेंज किए। और सपोर्ट सिस्टम मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने का भी मुझे एडवांटेज रहा। मेरा डिसिप्लिन देखकर मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी उनका टाइम इन्वेस्ट किया। जैसे कि खाने का मील्स जैसा, वो टाइम पे मैंने सोचा था कि कम ऑयली फूड्स मुझे खाना है, तो उस हिसाब से घर में के सारे ग्रोसरीज़ भी हमने चेंज किए थे, कि कम से कम फ्राइड फूड्स लाए, मतलब चिप्स, ये सारी चीज़ें तो घर पे बंद हो चुके थे वो टाइम पे। फिर कंटीन्यूअस ढूँढना भी चलता था कि खाने में कैसे कम ऑयल यूज़ करें। तो 2022 का ये अटेम्प्ट के लिए सबसे ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड एक ये भी था कि हाई एल्टीट्यूड में फिटनेस तो लगता है, पर साथ में मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ आने वाले थे। क्योंकि डेक्कन क्लिफ हैंगर में उन्होंने देखा था कि क्रू का कितना ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, और स्पेशली घर से जब इतना दूर जाना हो, तो उसमें उन्हें भी इस रेस का पार्ट होना था। तो उनका फिटनेस के लिए खाने का तो सबसे पहले हमारा इम्प्रूवमेंट घर में रहा। क्योंकि ऑफ कोर्स जो मम्मी का बनाना होता है, वो मैं तो खा ही लेता हूँ, प्लस पापा और मम्मी दोनों वो सेम खाना खाते हैं। तो मेरे ये पूरे रेस जर्नी के से मम्मी पापा का खाना में भी काफ़ी कम ऑयल, और ओवरऑल हेल्थ अच्छा खासा बढ़ने लगा। तो ये रेस में मैं फर्स्ट आया था, कि जिसलिए जैसे मैंने कहा था प्रैक्टिस काफ़ी सारी थी। अभी ये रेस होने के बाद में मैंने अ, तो वो साल कबीर ये रेस का पार्ट नहीं था, पर कबीर अगर वो रेस का पार्ट होता तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प भी होता, मुझे इनपुट्स भी मिलते थे। क्योंकि वो टाइम पे मैंने रेस के ही एक 5 दिन पहले फोतुला पास करने का सोचा था, एज़ अ प्रैक्टिस राइड, ताकि एक्लिमेटाइज़ हो सकूँ, कि जब आज मैं देखता हूँ बैक इन टाइम, ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरिया पे रेस के इतने थोड़े पहले ऐसा बड़ा स्टेप तो मुझे लेना नहीं चाहिए था। पर फॉर्च्यूनेट इनफ कि सारा चीज़ें सही हुए, और फिर ये रेस खत्म होते ही मैंने कोचिंग चालू किया। सो मैं कबीर से कोचिंग मैंने लेना चालू किया, क्योंकि मुझे अगला नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन जो था अल्ट्रा स्पाइस, ये रेस मुझे करना था। और जब कोचिंग मुझे लेने का मैंने सोचा था, तो मेरे दिमाग में यही एक चीज़ था कि करूँगा तो अभी 1750 का ही करूँगा, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड में वहाँ पे 600 किलोमीटर का रेस हुआ ऑन फ्लैटर टेरेन, या फिर कहीं पर भी, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 900 और 1000 किलोमीटर्स ऑफ साइक्लिंग का एफर्ट। तो मेरा 1200 के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, अच्छा टाइमिंग आएगा ज़रूर, पर 1750 करना है, बिकॉज़ अभी तक का भले ही ये बड़ा रेस रहा मेरा डिस्टेंस वाइज़, पर ये साल एट द ईयर एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, 2 काफ़ी बड़े रेसेस लाइन्ड अप है मेरे। तो जिसके लिए मेरी पूरी तैयारी अभी स्टार्ट हो चुकी है, टाटा मुंबई मैराथन दौड़ने के बाद में, थोड़ा रनिंग ज़ोन से बाहर आने के बाद में। तो अब तक का मेरा ये पूरा साइक्लिंग और रेसिंग का जर्नी रहा है। काफ़ी इंस्पायरिंग है, बट मुझे एक चीज़ जानना है, फॉर योर फर्स्ट एसआर
कौन सा साइकिल यूज किया था? तो जस्ट टेल एवरीवन, मैंने आई नो फर्स्ट बट एसआर सीरीज के लिए या। मैंने मेरे फर्स्ट एसआर सीरीज के लिए एक एंट्री लेवल बाइक यूज किया था, कि जो आइडियली देखा गया तो सिटी यूसेज तक के लिए ठीक है। तो वो ट्राइबन आरसी 120 पे मैंने किया था, जो कि यस। एक बहुत बेसिक रोड बाइक है, जो इतना एलिवेशन या इतने एंड्योरेंस राइड पे जाने के बाद में ऑफ कोर्स फील होता है कि क्यों लोग शिमानो 105 या रोड बाइक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कि जिसके से उन्हें मतलब उतना डिस्टेंस करना काफी आसान होता है। यस। और एंड देन उसके बाद कौन सी साइकिल यूज कर रहे हो? एंड इज इट योर ओन साइकिल? एंड हु, इफ नॉट देन हु इज हेल्पिंग यू, इफ यू वांट टू, अगर आप तुम बताना चाहते हो टू द ऑडियंस, लाइक विच साइकिल आर यू तो यूजिंग करंटली नाउ? यस। तो करंटली मैं आरसी 500 यूज कर रहा हूँ। तो ट्राइबन आरसी 500 मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं ट्रेनर पे यूज करता हूँ, और हुआ तो अक्सर बाहर कभी कभार ट्रेनिंग के लिए, तो वही सेम बाइक पे मैंने हाफ एवरेस्टिंग की है। और जब बात आई रेस की, तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गुड फ्रेंड्स। तो मेरे एक फ्रेंड निखिल, उन्होंने मुझे जितने भी मेरे अल्ट्रा साइकिलिंग रेसेस रहे आज तक, जो 4 रेसेस मैंने किए हैं, डेक्कन क्लिफ हैंगर 2 बार, अल्ट्रा स्प्राइस और ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा, तो उस रेस के लिए मैंने वैन राइजल का एफ 900 ये मॉडल मैंने यूज किया है। तो दैट बिलोंग्स टू निखिल, एंड मेरा खुद का जो है ट्राइबन आरसी 500 है। वेरी नाइस। एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट इंडोर ट्रेनिंग? उसके बारे में ऑल्सो, इफ यू कैन टेल। आई थिंक आफ्टर ग्रेट हिमालयन, राइट? यस, इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था, सितंबर 2022। तो देखते देखते अभी ऑलमोस्ट वन ऑलमोस्ट। एंड ए हाफ ईयर, हाँ, वन वन ईयर एंड 4 मंथ्स कुछ भी होने आए हैं। करेक्ट। सो जैसे कि तुमने बोला दैट ग्रेट हिमालयन के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, इन योर होल फैमिली न्यूट्रिशन वाज वेरी मच चेंज्ड, राइट? जैसे everyone started eating healthy, so you three of you stay together, correct? So यार, tell us little bit कि तुम्हारी डाइट क्या है डे टू डे के टाइम, एंड ड्यूरिंग रेस डे क्या थोड़ी वो चेंज होती है? एंड ड्यूरिंग रेस व्हाट डू यू ईट? सो लिटिल बिट अबाउट दैट। तो डे टू डे में खाना हुआ तो आई बिलीव जितना हमारा लोकल फूड्स है उतना हम खाए तो काफी ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल हमारे इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। तो मेरा रोज के खाने में आई हैव मेड इट हैबिट कि मैं मेरे डाइट में भाकरी को इंक्लूड करूं। सो इट अभी मेरे लिए टोटल एक 5 साल हुए रहेंगे कि जब से मैंने चपाती खाई नहीं है। तो चपाती के जगह पे मैं भाकरी खाता हूँ, बिकॉज इट्स अ वोल ग्रेन और उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट है। और ये हमारा ट्रेड एंशियंट ग्रेन भी है, तो बाजरी का हुआ या कभी ज्वार का हुआ, तो इसका भाकरी मेरा खाना होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो मैं ऐसे ही वेजिटेबल्स जानबूझ के चूज करता हूँ कि जिसमें ज्यादा आपको न्यूट्रिशन मिले या जो सुपर फूड्स रहे। और पल्सेस हुए, अभी बाय चॉइस आई एम अ वेजिटेरियन, और जब वेजिटेरियन की बात हुई तो मैंने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे डाइट में से एग्स को भी एक्सक्लूड किए हुए हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी एक्सक्लूड किए हुए हैं। तो जिसके वजह से ओवरऑल पूरा न्यूट्रिशन अप करने के लिए मैंने मेरे काफी ज्यादा रोज के इसमें दाल होता है, पल्सेस होता है, बीन्स होता है। बीन्स में जब हुए तो सोयाबीन की वैरायटी हुए, या फिर आपका हॉर्स ग्राम हुआ, मतलब काला चना हुआ, और अलग अलग जितने भी हमारे वैरायटीज है उतने। जब रेस की बात आ जाती है तब रेस के ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट का इंटेक में बढ़ा देता हूँ, मतलब रेस के थोड़ा सा एक वीक लीडिंग पहले राइस को मैं थोड़ा ज्यादा इंक्लूड करता हूँ। जैसे कि जब कोई क्योंकि मुझे जब पता है कि रेस पास में आ रही है, तब हमें मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्स को फुल रखने की बहुत आवश्यकता होती है, कि जिसके से रेस डे पे हमें एकदम फ्रेश फील करे और ज्यादा समय तक हम हमारा एंड्योरेंस को मेंटेन कर सके। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी यही समय पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक तकरीबन 2 हफ्ते पहले,
कि जिसकी वजह से बॉडी में काफी एनर्जी हाई रहे। और एट द रेस डे, जब रेस का रहे, जैसे अल्ट्रा रेस रहे, अल्ट्रा स्पाइस जैसे 5 दिन का रेस रहा, या डेक्कन क्लिफ हैंगर जिसमें आपको 24 से लेके 32 आवर्स लगेगा, लाइक 1 और 1.5 डेज। तो इसमें एनर्जी जेल्स पहले से ही प्रैक्टिस में यूज करने, या फिर कार्बोरंस नाम का एक प्रोडक्ट है कि जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कॉर्न स्टार्च हम्म। और फिर डेक्ट्रोस हुआ, माल्टोडेक्स्ट्रिन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स के थोड़े सोर्सेस की जिसके लिए एक बार बॉडी यूज टू हुए रेस के पहले, तो कोई रेस के दिन कोई ऐसा बॉडी को शॉक ना रहे कि स्टमक अपसेट हो। बाकी उसके अलावा नॉर्मल डाइट रखता हूँ मैं। और ऐसा ऐसा नहीं रखता कि जिसमें मेरा और विल पावर मुझे लगे। जब मुझे कभी लगता है कि फ्लेवरिंग कुछ चेंज करे, तो थोड़ा सा स्पाइसी या फिर थोड़ा चटपटा बीच बीच में कभी कभार खाता हूँ, बट माई आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदत भी लगी है कि जंक फूड को क्रेव भी नहीं कर रहा हूँ। वेरी नाइस। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक जो मतलब हिमालयन के टाइम से जो आदत लगी है तुम्हें, दैट इज हेल्पिंग अ लॉट आई गेस, राइट? यस। And with respect to food, do you take protein powder as well? And what तो about प्रोटीन supplements? पाउडर ऑन एंड ऑफ, प्रोटीन पाउडर इज ऑन एंड ऑफ फॉर मी। तो जब रेस जब पास में रहता है, वही टाइम पे मेरा प्रोटीन पाउडर का कंजम्पशन थोड़ा बहुत आता है। तो फॉर प्रोटीन पाउडर आई यूजुअली चूज अ पी प्लांट प्रोटीन। तो उसके Hmm. लिए रेस के बाद में मसल रिकवरी की थोड़ी ज्यादा नीड होती है, उतना मसल फाइबर ब्रेकडाउन होने की वजह से। तो उसके थोड़े Hmm. डेज लीडिंग आफ्टर और थोड़े डेज लीडिंग एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग साइकिल्स, मतलब रेस के पहले और रेस के बाद में, वो टाइम पे रखता हूँ। बाकी उसके अपर घर का जो खाना है उसमें से आपका पूरा रिक्वायरमेंट हो जाता है। बस ध्यान हाइड्रेशन पे ज्यादा देना होता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो Hmm. पानी पे ज्यादा ध्यान देना है। और खाना घर का आप खाते रहोगे तो भी आपका जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है वो मीटअप हो जाते हैं। करेक्ट। और एक चीज़ है दैट मैंने नोटिस किया है कि डिकैथलॉन में यू वर्क, सो डिकैथलॉन के शिफ्ट्स होते हैं रात के 12 बजे तक, आई थिंक 11 बजे जनरली यू रीच होम। सो डू यू डू डिनर आफ्टर रीचिंग होम और इन द स्टोर इटसेल्फ? बिकॉज जनरली बोलते हैं कि बिफोर स्लीपिंग 2 to 3 hours पहले यू शुड हैव योर फूड। सो हाउ डू यू डू इट? डू यू कम होम एंड हैव फूड, और डब्बा लेके ही निकलते हो, कैसे रहते? इनिशियली मैं घर पे ही आके खाना खाता था, बट जैसे ग्रेट हिमालयन रेस ये हुआ, वो रेस के बाद में भी, तब उसके बाद में तक मेरा घर पे आके, मतलब घर पे आते थे रात के 11:30 बज जाते थे, फिर बाद में खाना खा के फिर तुरंत सोने। सो ओवर, मतलब ये रेस के थोड़े महीने बाद में फिर मुझे फील होने लगा कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। ये खाना जब रात को जब आप सोते हो तो बॉडी को पूरा रिकवरी में उतना समय गया हुआ बेस्ट है, रादर देन स्पेंडिंग मोर देन हाफ ऑफ द टाइम डाइजेस्टिंग। मतलब 2 से 3 घंटा अगर उसमें डाइजेस्ट होने में जाते रहेगा, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके स्लीपिंग आवर्स 12 से लेके 4 तक मानो, उसके बीच में आपका अगर हाँ। डाइजेशन में ही आपका टाइम जाते रहेगा, तो आप होके भी कितना रिकवरी और फ्रेशनेस आपको मिलेगा। तो उसके बाद में मेरा खाने का मैंने ऐसा किया कि स्टोर में लकीली एक रेफ्रिजरेटर भी है हमारे पास, वाटर डिस्पेंसर में। तो मैं रात का भी खाना लेके जाता हूँ, वहाँ पे स्टोर करता हूँ एट अराउंड द टाइम ऑफ 7:38। 8:30 इज द मैक्सिमम अपर सीलिंग फॉर मी विच आई कीप टू हैव माई डिनर। तो 7:30 to 8:30 के बीच में मैं देखता हूँ, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब उतना ज्यादा स्टोर में कस्टमर बेस ना हो या फिर टीममेट्स रहे लेआउट में, तो वैसे फिर मैं उन्हें कह के मेरा जो आधा ब्रेक है मैं रात को खाने के लिए रखता हूँ। लंच में आधा ब्रेक आधे घंटे का वहाँ पे होता है, और जो बाकी का आधा घंटा रहा वो मैं रात के समय में डिनर कर लेता हूँ 7:30 to 8:30 बीच में। वेरी नाइस। सो टॉकिंग अबाउट रिकवरी, रिकवरी के बारे में यू आर सेइंग अबाउट व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट डाइट, तो रिकवरी के लिए क्या क्या करते हो तुम, और क्या चेंजेस हुए हैं ओवर द इयर्स? पहले हाउ यूज्ड टू लुक एट रिकवरी, एंड नाउ व्हाट आर द थिंग्स यू आर डूइंग अदर देन व्हाट यू यूज्ड टू डू प्रीवियसली? जनरली रिकवरी में हम मसाज लेते हैं या जस्ट वी टेक रेस्ट, बट नाउ आर यू डूइंग समथिंग डिफरेंट, या फिर वही चल रहा है, कैसा है? हाउ इम्पोर्टेंट इज रिकवरी अकॉर्डिंग टू यू?
when you're doing this kind of events? सो कोई भी स्पोर्ट का एक्टिविटी हो या फिर इन जनरल डे टू डे एक्टिविटी में भी हो, जब आप कोई नया चीज करते हो तो बॉडी के लिए शॉक होता है। आप थोड़ा दिन आपको मसल सोरनेस फील होगा या मसल पेन फील होगा, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 48 आवर्स हुए या 72 आवर्स हुए, वो मसल का हीलिंग प्रोसेस होके यू अगेन फील स्टार्ट टू फील नॉर्मल। पर उसी समय पे स्ट्रेचिंग हुआ या फिर आपका जितना बॉडी को मूवमेंट करो, उतना आपका फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहता है। अगर आपने कोई जैसे एग्जांपल बॉडी वेट वर्कआउट चालू किया या साइकिलिंग या रनिंग चालू किया, और उसके ये इवेंट के बाद में या फिर उसके लेटर ऑन डेज में अगर स्ट्रेचिंग नहीं किया, पूरे ऐसे ही मतलब बॉडी जब आपका थोड़ा मसल पेन हो, आपने कुछ एक्टिविटी नहीं किया, तो जब आपका वापस वो मसल रिपेयर होता है, जो आपका प्रीवियस फ्लेक्सिबिलिटी था, वो कभी-कभी एट टाइम्स आपको फील भी होता है कि बॉडी और टाइट हो गया है। और Hmm. तो पहले मैं इतना ध्यान नहीं दिया करता था इसके ऊपर, कोई भी रेस होने के बाद में या फिर प्रैक्टिस सेशंस के बाद में फ्लेक्सिबिलिटी हुआ या फिर जब तक खाने का हुआ, तो रात को इतना लेट खाता था, तो रिकवरी पे बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें पता थे, पर कभी इन प्रैक्टिस लाना नहीं हुआ। उसके बाद में जैसे खाना का टाइमिंग मैंने चेंज करने के बाद में अभी जैसे कोई भी रन होता है या साइक्लिंग होता है, तो ओवरऑल उसमें मैं स्ट्रेचिंग पे भी थोड़ा फोकस देता हूँ। नॉट एज मच एज आई वांट टू, बट ऑफ कोर्स उसमें मैं ध्यान देता हूँ। और जब बात हुई ओवरऑल रिकवरी की, तो हाइड्रेशन एक है कि जिसका वैल्यू मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा रेस के दौरान ही मुझे पता चला। सो 2022 हैज बीन एन गेम चेंजर फॉर मी, कि वहां पे जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तब आपको पानी का असली वैल्यू आपको पता चलता है। कितना खाना आपने खाना चाहिए, आपने क्या खाना चाहिए, रेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस होता है, आपने मतलब ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है कि रिकवरी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको हाई एल्टीट्यूड में पता चलते हैं। फिर क्योंकि वहाँ का आपका जो एनवायरनमेंट होता है, तो जैसे कहते हैं यू आर मतलब जैसा वो कहना है कि आप आपका जो कंपनी है, आपका जो भी कंपनी है, उसी का आप बाय प्रोडक्ट हो। मतलब आप आपके कंपनी, आपके आजू-बाजू के जितने भी लोग हैं, वो जितने ज़्यादा फिटनेस में रहेंगे या कोई भी अ, ज जितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वो रहेंगे, उतना ही डिसिप्लिन You're the आप में average. दिखाई देगा, उतने ही यू आर द एवरेज ऑफ द पीपल यू सराउंड विद। Five यू आर द people. एवरेज Yeah. ऑफ पीपल हू यू सराउंड विद। तो इसमें अभी जैसे ये रेस होने के बाद में जैसा मेरे क्रू मेंबर्स रहे मेरे रेस में, तो सभियों का जो एफर्ट वो अपने लाइफ में डालते हैं इम्प्रोवाइज करने के लिए, या जैसे साइक्लिंग में मैंने जैसे कोचिंग मैंने अंडरटेक करना चालू किया, तो एक-एक इनपुट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते गए। मेरा लाइफ़स्टाइल मुझे रिकवरी के तरफ रिकवरी की तरफ और इम्प्रोवाइज़ करने में, कि जिसमें हाइड्रेशन एक चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया। फिर बाद में एक्टिविटी के बाद में स्ट्रेचिंग पे हुआ, फिर बाद में आइस बाथ्स भी मेरे चालू थे। तो मसाज और आइस बाथ तो भी आप थोड़े टाइम बाद डाल सकते हो, पर मसाज ये एक ऐसी चीज़ है जो इस पे ज़्यादा लोग नहीं ध्यान देते, पर मंथ में एटलीस्ट बेयर मिनिमम 1 मसाज तो लिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुए तो महीने में 2 तो करने, कि जिसके से आपका पूरा जितने भी मसल में एडिशंस हो गए, मतलब जब आप ब्रेक डाउन करते हो, अगर कोई मसल में नॉट हो, तो उससे मसाज लेने के बाद में आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। आपके रिकवरी एबिलिटीज़, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपका पावर आउटपुट और ओवरऑल आपको ही और अच्छा लगता है। तो वो एक काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा, कि जिसमें मैं कंसिस्टेंटली सरप्राइजिंगली रहा हूँ। तो मैं मेरे खुद के साइड से मैं ट्राई करता हूँ एटलीस्ट मंथ में 2 मसाज तो मैं जब मेरे वीक ऑफ हो तब ट्राई करता हूँ कि उतने हो सके। फिर मूवमेंट, कि जिस दिन कोई कोई भी मेरा एक्टिविटी ना हो, मतलब रेस्ट डे हो, तो ऐसे ही पड़े रहने से अच्छा वॉकिंग के लिए निकलता हूँ। और जब वॉकिंग की बात आए, तो उसमें मैं ट्राई करता हूँ अर्ली मॉर्निंग हुआ, गार्डन में वॉक करने, या फिर लेट इवनिंग हुआ कि खाना खाने के बाद में वॉक करने, कि जिससे और थोड़ा बेटर डाइजेशन में हेल्प हो, सर्कुलेशन में हेल्प हो। तो ये सारे छोटे-छोटे चीज़ें हैं कि जो मैंने कंसिस्टेंटली इन चीज़ों में मैं रहा हूँ, कि जो रिकवरी में ऑफ कोर्स हेल्प करते हैं। और बाद में एट द एंड ऑफ द डे आपको स्मार्ट रहना है, आपको आपका बॉडी का भी सुनना है।
क्योंकि अभी जैसे मेरा है, रनिंग अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो रनिंग में कैसा काफी हाई इम्पैक्ट होने की वजह से इसमें भी, जबकि मेरे सारे सर्कल्स में उन्हें पता हो कि आई कैन डू इवन बेटर, स्टिल मैं मेरे खुद के पेस से मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ, ताकि कोई बड़ी इंजरी आके क्रीप अप ना हो, इंजरी फ्री रहूं। और अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जो जैसे चालू किया है, वो भी एक रिकवरी का ही पार्ट में मैं कंसीडर करता हूँ, कि जो मुझे कल या परसों इंजरीज से मुझे बचाने का काम करे। कितनी सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं जो जनरली हम ओवरलुक करते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें ही कंपाउंड होती है, राइट, ओवर द इयर्स। हम्म। ओके, वेरी नाइस। बट मैंने ना तुम्हें देखा है आइस बाथ लेते हुए भी। सो हाउ इज इट, हाउ ऑफन डू यू टेक इट, एंड डज इट रियली हेल्प, आइस बाथ? आइस बात एक आइस बात का डिस्कवरी भी मेरा 2022 में ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा के पहले हुआ है। तो आइस बात में जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था, तब तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि पानी जब मतलब बर्फ जब पानी में डालते हैं, तो टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। और आइस बात में कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब आप पहले कोल्ड आइस वाटर में रहोगे, उसके बाद में एक तो हॉट शावर लोगे, या तो फिर आप पानी के बाहर रहोगे फॉर मिनट और 3 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन कैसा आइस बात का आप साइकिल लोगे। तो जब आप बाहर आते हो, तब वापस जो ब्लड होता है आपके सारे वेन्स में वापस गश करता है, एक फोर्स में आता है, जिससे आपका कॉन्ट्रास्ट होता है। मतलब एक बार पानी में जब जाते हो, तो पूरे ब्लड वेसल्स आपके कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जब आप पानी से बाहर आते हो, ब्लड वेसल्स आपके एक्सपांड होते हैं। तो आपको रिकवरी में तो काफी हेल्प करता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपका बॉडी अडेप्ट होते जाता है वो ठंड से। तो मेरा जब भी रेस आता है, उसी समय पे मैं कोल्ड बाथ्स लेता हूँ। और ये साल का तो प्लान है मेरा कि खुद का ही एक सेटअप बनाने की, जिसकी वजह से अरे वाह! एक कॉस्ट फैक्टर भी काफी ज्यादा कंट्रोल में आ सके, क्योंकि हर बार ये करना कॉस्ट काफी ज्यादा, मतलब हर बार कितना लेते तो कॉस्ट है? बैक ऑफ द माइंड होता है कि हाँ भाई, अच्छा खासा इन्वेस्टर है। तो आइस बात सेशन 1250 के अराउंड पड़ता है। तो वेरी करता है आप कहाँ पर लेते हो, क्योंकि आपको बहुत कम जगह है कि जहाँ पर आपको आइस बात के फैसिलिटीज मिलते हैं। पर मैंने आइस बात का ये जो जर्नी था, वो इनिशियली घर से ही मैंने चालू किया था। पहले फ्रीजर में मैं पानी बर्फ। स्टोर करके रखता था फ्रीज करने के लिए। तो घर पे आइस बात, फिर ठंडे पानी में फिर आइस के ब्लॉक्स डाल के फिर चालू करता था मैं। और उसके बाद में वो लिमिटेशन फील होने के बाद में फिर मैंने वो प्लंज लिया कि आइस बात कहाँ पे यहाँ पे मिल सकता है। और फिर बाद में एक रिप्ले फिजियोथेरेपी आउटलेट वाशी में एक है, कि जो मुझे पास पड़ता है, तो वहां पे मैंने आइस बात के सेशंस मैंने स्टार्ट किए थे। तो रेस के इन एंड अराउंड ही करता हूँ। अभी ट्राई करूंगा घर पे वैसा एक सेटअप बनाने के लिए, एक दिखा है। लेट्स इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स वापस अभी फिर से रेगुलर होगा वो चीज में। वेरी नाइस। सो अब बात करते हैं अबाउट योर डेक्कन क्लिफहैंगर सेल्फ सपोर्टेड रिसेंट जो साइकिलिंग रेस हुआ था, उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानना है दैट व्हाई डिड यू टेक पार्ट इन सेल्फ सपोर्टेड व्हेन यू वांट टू, जब तुम्हें रेस अक्रॉस अमेरिका जैसी रेस अगर करनी है, तो व्हाई सेल्फ सपोर्टेड में? एंड अगर किसी को आगे जाके सेल्फ सपोर्टेड में लेना है, तो कैसे वो ट्रेन करे? And what do you think, which is more difficult, self-supported or crude race of the Deccan Cliffhanger? So yeah, how was your experience? Self-supported कैसा था? Was it difficult then or easy? Because तूने बहुत दोनों किया है, क्रू वाला भी किया है and सेल्फ सपोर्टेड। ऑल्दो रूट थोड़ा डिफरेंट था, मे बी सेल्फ सपोर्टेड के लिए अम्बोली घाट का था, बट स्टिल। एंड to Deccan Cliffhanger's crude one was your first ultra race. And this one is your latest, and you're much more fitter and much more experienced in ultra cycling. So कैसा था experience? So you can share about it. Self supported. सो मैंने पिछले साल प्लान किया था पहले से ही, कि मुझे सेल्फ सपोर्टेड डेक्कन क्लिफहैंगर करना था, क्योंकि वो अनाउंसमेंट सेल्फ सपोर्टेड का हुआ था
बैक इन 2022 थी कि तो मैंने जैसे ही सोचा कि 10th एडिशन भी है, तो मैं बोला रादर देन डूइंग इट सपोर्टेड, एक सेल्फ सपोर्टेड में भी देखता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं फॉर अ सेल्फ सपोर्टेड रेसर। और जब मैंने प्रैक्टिस भी उतनी करके रखी थी, तो मैंने खुद के लिए ये सोच के मैंने रजिस्टर किया कि विदाउट द हेल्प ऑफ क्रू मैं कैसे रेस कर सकता हूँ, क्या कैपेबिलिटीज है मुझ में, कहाँ पे मुझे कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करने की फेस करूंगा। तो मुझे खुद को बस सेल्फ डिस्कवर करने के लिए मैंने इंस्टेड ऑफ क्रू सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन करने से अच्छा आई थॉट टू डू इट सेल्फ सपोर्टेड। और जबकि कंपैरिजन में हुआ क्रू सपोर्टेड वर्सेस सेल्फ सपोर्टेड, दोनों भले ही रूट सेम हो, पर आपकी स्ट्रेटेजीज पूरी चेंज हो जाती है, आपका न्यूट्रिशन भी चेंज हो जाता है और ओवरऑल आपका सपोर्ट पूरा चेंज हो जाता है। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं यही कहूंगा कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पेस अगर आपने प्लान किया होगा, तो वन इज मच बेटर ऑफ गोइंग फॉर सेल्फ फॉर सपोर्टेड हम्म। इनिशियली। अगर आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेस का प्लान करते रहोगे, तो सपोर्टेड काफी अच्छा रहेगा आपका, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट भी रहेगा तो, क्योंकि आपके साथ में आपका पूरा एक मतलब आपका क्रू रहता है जो आप अब सिलेक्ट करते हो। और वो आपको वो जब हार्ड पार्ट जब आते हैं, तब आपको वो सपोर्ट करने के लिए रहे। अगर आपको अल्ट्रा साइक्लिंग में स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी ये तो रैम क्वालिफायर भी है, और आपको ओवरऑल रेस एक्सपेंस ज्यादा होने नहीं देना हो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस भी आप अगर देखते रहोगे, या फिर आपको सेल्फ सपोर्टेड इसके पहले जो भी इवेंट्स किए हुए आपके अगर काफी अच्छे हुए हो, आपको नाइट टाइम में चलाने का भी एक्सपीरियंस आपने अच्छा गैदर किया हो, तो सेल्फ सपोर्टेड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कि जहाँ पे आपको उतना नया कोई नहीं रहेगा, नया चीज नहीं रहेगा, जैसे क्रू को पूरा असेंबल करने, और बस आपको ही चलाना है, आपको पता है, आपको और कोई चीजें के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और ओवरऑल एक रेस में जो आपका एक्सपेंस होगा सपोर्टेड का, उसी जगह पे सेल्फ सपोर्टेड के आप आराम से 3 से 4 रेसेस कर लोगे, मतलब इतना कॉस्ट में वेरिएशन आ जाता है। तो सेल्फ सपोर्टेड जहां तक रहा, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने मुझे ये समझा, मुझे क्रू का इम्पोर्टेंस मुझे तब पता चला। हर मिनट में चला रहा था जब साइकिल, तो मुझे मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि ये क्रू मेंबर को कॉल करूं, इससे बात करूं, उससे बात करूं। तो जब मुझे कभी भी क्रॉस किया था, या फिर इंस्पायर इंडिया भी मुझे के ऑफिशियल सभी भी मुझे क्रॉस कर रहे थे, हर समय मुझे उस क्रू की याद आ रही थी। तो बस यही याद आ रहा था कि क्रू मतलब जो क्रू सपोर्टेड रेसिंग करता है, उसे कितना ज्यादा मेंटल बूस्ट और एक फिजिकल क्या कहते हैं सेफ्टी कह सकता हूँ, एक या कंफर्ट जोन नहीं कहूंगा पर डेफिनेट। फिजिकल सेफ्टी कहूंगा, कि पास में और पीछे कोई सपोर्ट व्हीकल होने का, कि जिसके वजह से जो राइडर है वो निश्चिंत होके पुश कर सकता है। कभी अगर उसका माइंड भी गिव अप करने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे या कुछ भी, तो पीछे क्रू भी है कि जो वो पैच पे बात करके मतलब कोई ना कोई बात करने को रहे, कि जिसकी वजह से और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सके। तो ये साल मैंने यही देखा कि मतलब ये तो बस हाइपोथेसिस है, जो सच भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। अगर क्रू सपोर्टेड ये साल अगर मैं करता, तो सब 24 या 24 आवर्स कहीं नहीं जा रहे थे। क्रू सपोर्टेड में डेफिनेटली। सेल्फ सपोर्टेड ये तो बहुत ज्यादा टाइम करने के ऐसे, तो इसमें भी लाइट लाइट की बात आई, या फिर न्यूट्रिशन का हुआ, तो उसमें भी कई सारी चीजें मेरे हिट एंड मिस हुए, कि जिसकी वजह से पेस भी मुझे डाउन करना पड़ा था। और ओवरऑल उसमें चलाते समय भी कैसे एक चीज ऐसे रहता है कि एक कंफर्ट जोन में जाना होता है, कि हाँ पता है टाइम काफी ज्यादा है, रेस आराम से होने वाला है, अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ, रास्ते थोड़े खराब है, क्यों उसमें फोकट का ऐसा। तो बहुत सारे ऐसा, फिर एक टाइम के बाद में ऐसा भी होता है कि तुम अकेले ही चला रहे हो, कि साथ में कोई है ही नहीं, कि कितने समय तक अकेला चला चला के चलाओगे, क्योंकि डिकैथलॉन में
जो भी वीकेंड पे राइड्स होते हैं, तो राइड्स मेरा भी लीड करना होता है, या फिर जब रेसेस होता है तो क्रू सपोर्टेड रेसेस करने के से हमेशा कंपनी होती है आसपास में। हम्म। अकेला कभी उतना चलाने का होता ही नहीं कि बस आप चलाते रह रहे हो, और वो भी एक अच्छे पेस में चला रहे हो। जब आप एक स्लो पेस पे चलाते हो तो थोड़े टाइम बाद बोर होने होता है। पर जब आप अच्छे पेस पे चलाते हो और कोई भी आसपास में ना रहे ना, तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, कब पहुंचेंगे। काफी सारे थॉट ऐसे दिमाग में आते हैं। तो दोनों रेस का अपना अलग ही एक्सपीरियंस है, और काफी अच्छा है। दोनों में से कोई भी इसमें कर सकते हो। एंड वंस अगेन, अगर आपको ज्यादा पुश करना हो और ऑलरेडी आपका पेस काफी अच्छा है, फर्स्ट टाइम अगर करते रहोगे कोई अल्ट्रा रेस, या फिर आपने इसके पहले एसआर सीरीज ना किए हो या 600 नहीं किया हो, क्रू सपोर्टेड इज द वे टू गो। एक काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको रहता है साथ में। और अगर आपने ये सारा चीजें करके हो चुका है, एसआर हुआ है, रात में चलाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पर आपका आपके साथ में फ्रेंड भी पार्टिसिपेट कर रहे हो कि जिसका पेस आपसे बेटर या आपसे मैच हो रहा है, आप अगर फन के लिए जा रहे हो, मतलब आपको पता है कि आपका खत्म होने वाला है रेस, तो फिर साथ में फिर टीम अप करके चलाओ, फिर ताकि आप बोर भी ना हो, आपको कंपनी भी रहे। तो अब उस तरीके से आप एंजॉय कर पाओगे पूरे रूट को। अरे अभी तो अल्ट्रा स्पाइस में लोगों ने 1750 में सेल्फ सपोर्टेड कर रहे, 1750 किलोमीटर्स में। हमें याद है हाँ। 2023 में किशन किशन गोंदिया, he did self हम्म। supported in less timing than us. So 650 में हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, 600 में हाँ, 1750 राइडिंग अलोन इज लाइक नेक्स्ट लेवल। बट हाँ, वो आई भी एग्री मेरा विथ यू, द किशन भी सेफ्टी मेरे लिए एस्पेक्ट। किशन करेक्ट, किशन भी मेरे लिए काफी बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है, कि जिसके से मैंने हम्म। सोचा कि मुझे ये साल सेल्फ सपोर्टेड कर रहा है। तो ये 1750 है, जब सपोर्ट होके ऐसा लग रहा था कि मतलब तब डर लग वही। रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि अकेला कर रहा है तो कैसा कर रहा है। और आज तक जितना भी सेल्फ सपोर्टेड भी अल्ट्रा स्पाइस खासकर जो सेल्फ सपोर्टेड कर रहे हैं, उनके लिए तो 1750। अलग लेवल का रिस्पेक्ट है। 1750 अलग लेवल का रिस्पेक्ट है उनके लिए। 1750। क्यों? अलग 1200 भी डिफिकल्ट है, 1200 भी चैलेंजिंग है, पर 1750 और ऊटी जाके वापस आना, वो सेल्फ सपोर्टेड आप कर रहे हो नेक्स्ट तो लेवल। आप अलग ही लेवल पे हो, नेक्स्ट लेवल हो आप। अभी तो रेस अक्रॉस इंडिया जो है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, अगर उसमें उन्होंने सेल्फ सपोर्टेड ला दिया, देन तो भाई द पर्सन हु फिनिशेस दैट सेल्फ सपोर्टेड इन द गिवन टाइम, दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। अल्ट्रा स्पेस भी काफी क्लाइंबिंग है, मैंने देखा एज अ क्रू भी। आई वाज ऑब्जर्विंग, बस ऊपर ही जा रहे हैं। देयर इज नो फ्लैट नथिंग, एंड उन्होंने रूट भी इस तरह से लिया है कि छोटे छोटे विलेजेस में लेके जा रहे हैं, ऐसा कोई हाईवे से नहीं है। सो बहुत क्लाइंब्स है अल्ट्रा स्पाइस में भी, और उसमें आप सेल्फ सपोर्टेड कर रहे हो। वो ऊटी का नाइट का सेक्शन हम लोग को रोका था बिकॉज ऑफ दैट एलिफेंट कॉरिडोर। तो उस सेक्शन में अगर सेल्फ सपोर्टेड इज द नेक्स्ट लेवल। देखते हैं, मे बी इन फ्यूचर, लेट्स सी। सो या, सो एक चीज मुझे जानना था फ्रॉम यू, दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुमने अभी चालू किया है, ऐसा तुमने बोला। तो इसका मतलब है कि इसके पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू नॉट यूज्ड टू डू एट ऑल, और इट वाज वेरी बिल्कुल नेग्लिजिबल। भी नहीं, वेरी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल भी नहीं बोलूंगा, करता ही नहीं था। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में व्हाट एक्सरसाइजेस डू यू डू, अभी जो चालू किया सो है वो? जिम में जाते हो या बॉडी वेट करते हो? और कितने घंटे करते हो, हफ्ते में कितनी बार करते हो? और हाँ, इन जनरल, लाइक दिस। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फिलहाल तो मैं बॉडी वेट और वेट्स के साथ में कर रहा हूँ घर पे। जिम मेंबरशिप तो सब जोश जोश में लगा देते हैं, मैंने भी लगा दिया था 2023 में। पर फिर आप जब जिम भी लगाने का आप सोचते हो, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपके पास टाइम कितना है, आपका शेड्यूल कैसा होता है, मतलब आपका वर्क लाइफ के साथ में ट्रैवलिंग टाइम, ये सब कंसीडर करके। तो 2023 में जिम का मेंबरशिप मेरे आंखों के सामने ही ऐसे जाते हुए मुझे जब दिखा, तब उसके बाद में फिर बॉडी वेट वर्कआउट के लिए घर पे पुलअप बार मैंने एक लगाया। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो मेरा होता है, बॉडी वेट में पुलअप्स हुआ, पुशअप्स हुआ। लोअर बॉडी के लिए फिलहाल उतना ज्यादा नहीं कर रहा हूं मैं, एज मच एज आई शुड बी डूइंग। पर
लोअर अपर बॉडी ट्रेनिंग करना, रनिंग हुआ या फिर साइकिलिंग हुआ या फिर आप कोई भी स्पोर्ट, ट्रेकिंग भी इवन करते रहोगे, हाइक वीकेंड पे हाइकिंग के लिए जाते रहोगे, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कोई मसल ग्रुप का उतना ज्यादा आपके स्पोर्ट में यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो बॉडी को कोई रीजन नहीं होता उसे मेंटेन करने के लिए। तो मुझे भी फील हुआ कि विद साइकिलिंग भले ही कोर और लेग्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, एरोबिक कैपेसिटी भी इम्प्रोवाइज हुआ है, पर जब बात आई अपर बॉडी की, बॉडी वेट कम होके भी पुलअप्स में बॉडी काफी स्ट्रगल करता रहा। पुशअप का स्ट्रेंथ तो मेंटेन रहता है, पर पुलअप्स हुआ या फिर बॉडी वेट डिप्स हुए, ये सब में काफी ज्यादा हिट हुआ। और अपर बॉडी का एक्सरसाइजेस करने का दूसरा भी एक रीजन था, ओवरऑल जब बाइक पे रहूंगा तब स्ट्रेंथ बढ़ाने के, मतलब स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ने के लिए, और बॉडी कम फटीग होने में। तो अभी के लिए तो हफ्ते में मेरा 2 दिन ट्रेनिंग चल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि आई एम टेकिंग इट इजी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि रिकवरी के डिमांड्स भी ऑफकोर्स उसके साथ में बढ़ते हैं, कि आप एकदम हेवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे और साथ में आपका ट्रेनिंग भी रहेगा, तो आपको भी रिकवरी में और थोड़ा अफेक्ट करेगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल जो मेरा शेड्यूल होता है वो हफ्ते में 2 दिन, वेनसडे और सैटरडे को मेरा ट्रेनिंग होता है। वेनसडे को रनिंग ग्रुप के साथ में मैं फिलहाल कर रहा हूँ। ओ। हमारे यहाँ पे जो लोकल रनिंग ग्रुप है उनके साथ में अपर बॉडी के लिए सूर्य नमस्कार हुए हैं, लोअर बॉडी के लिए भी एक्सरसाइजेस, लंजेस हुए या फिर जंप्स हुए, स्टेयर्स के सेशंस हुए, तो वो सब करना हो रहा है ताकि बॉडी को और, लोअर बॉडी को भी और इंजरी प्रूफ सकूं। हम्म। गुड। So basically pull-ups, push-ups, squats, calf raises, हम्म। crunches, and what else? Pike push-ups for shoulders. यही सब exercises, right? So on an average 6-7 ये सारे exercises बेसिक, करते हो? 6-7 exercises in a session? करेक्ट, Okay. करेक्ट। 6 टू मोर देन 6 टू 7 एक्सरसाइजेस होते हैं, क्योंकि सर्किट बेस्ड में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें इट डज नॉट टेक मोर देन एन आवर्स टाइम। तो अभी Okay. ग्रुप के साथ कर रहा हूँ, तो इट इज अर्ली मॉर्निंग, तो 6:15 6:30 को स्टार्ट होता है, तो 6:30 to 7:30 तक हो जाता है। और उसके बाद में इवन मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा तो भी इट डज नॉट कम इन द वे। Okay. तो मैंने सुना कि you do running also. तो सबसे पहले मुझे जानना है that as a cyclist, why did you start running? And that too, you have taken it to that level कि half marathon you have finished in 1.5 hours, Tata Mumbai Marathon. So why did you start running? सच में उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? और क्या अल्ट्रा साइक्लिस्ट को भी रनिंग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सो या यू कैन स्टार्ट। रनिंग एक ऐसा काफी बढ़िया स्पोर्ट है कि जो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी स्पोर्ट कर रहे हो, आपको ये ओवरऑल आपके लॉन्जेटिविटी के लिए और ओवरऑल बॉडी के स्ट्रेंथ, आपका एक्सप्लोसिवनेस रहने के लिए काफी हेल्प करेगा। बस ये एक स्पोर्ट का एक ही सबसे बड़ा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ओवरबोर्ड जाना नहीं है, बहुत आराम से स्टार्ट करना है, ताकि आप ज्यादा समय तक आपके कोई भी दूसरे जो मेन स्पोर्ट है उसको हैम्पर भी ना करो, और ना ही कोई इंजरी कर बैठो। तो रनिंग मुझे तो काफी समय से करना था, पर ये साल टाटा मुंबई मैराथन करना था, उसी बहाने मेरा रनिंग स्टार्ट मैंने सितंबर के महीने में किया था। सितंबर के टाइम पे लास्ट लास्ट फुल मैराथन्स और मतलब हाफ मैराथन्स या 10Ks थे, कि टाइमिंग चिप के साथ में जो रन्स थे वो टीएमएम क्वालिफायर थे। तो लास्ट लास्ट का जो था वो डिकैथलॉन मुंबई का 10K रन फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ था। तो उसमें प्री रजिस्ट्रेशन एज डिकैथलॉन टीममेट्स हमें था, या फिर इर्रिस्पेक्टिव अगर वो नहीं भी होता तो भी रजिस्ट्रेशन करके टीएमएम के लिए क्वालिफाई होना था, वो एक टारगेट था। तो कैलकुलेशन ऐसे करके रखा था कि सितंबर में 10K के रन से क्वालिफाई होने, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ऑलमोस्ट जनवरी का एक पहला वीक, मतलब 3 मंथ्स भी एक ठीक ठाक समय है 21 किलोमीटर्स के लिए तैयार करने, रेडी होने की, जिसके कारण फिनिश तो हो सके, फिनिश तो होगा। पर जैसे ही मैंने मेरा फर्स्ट 10K किया, उसके बाद में कंसिस्टेंसी मैंने और लाई रनिंग में।
तो स्लोली स्लोली मैंने हफ्ते में 3 दिन रनिंग स्टार्ट किया। वो करते करते रनिंग का बेनिफिट तुरंत नोटिसेबल होने लगा, और वो रहा हार्ट रेट में। तो रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि जहाँ पे आपको हार्ट रेट कंट्रोल करना काफी आसान होता है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, एज कंपेयर टू साइकिलिंग। ये साइकिलिंग में जितना भी मैंने इसके पहले ट्राई किया था आउटडोर्स हार्ट रेट कंट्रोल में लाने, हर दिन काफी अलग रहता है। तो कभी टेलविंड ज्यादा होता है, उस दिन आपको पेस ज्यादा अच्छा मिलता है, या कोई दिन हेडविंड होता है कि जिसपे आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड कम करना पड़ता है, आपका हार्ट रेट को एक जोन 2 या फिर 60% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट मेंटेन करने के लिए। तो कभी अभी तो ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलाना पड़ता था, कि जो मुझे तो पर्सनली काफी बोरिंग लगा, और पैरों पे उतना कंट्रोल कभी नहीं रहता था। पर रनिंग के साथ में वो एक काफी आसानी से कंट्रोल रहा है। हार्ट रेट, कोई स्पेसिफिक हार्ट रेट देख के या फिर कोई स्पेसिफिक पेस में दौड़ने, कोई थोड़े से ही प्रैक्टिस के साथ में वो इजीली आया। और अगर वॉच रहेगा, जीपीएस वॉच रहेगा, तो उल्टा और भी ज्यादा आसान होता है, जैसे गार्मिन वॉच हो या इन जनरल कोई भी, क्योंकि वहां पे आपको आपका एवरेज पेस, करंट पेस, ये सारे मेट्रिक्स काफी आसानी से दिखते हैं। और मोबाइल में भी दिखता है आपको, देखा गया तो। पर घड़ी पे थोड़ा सा आसान होता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट रनिंग पे तो एम्फेसिस इसलिए था, और रनिंग का स्टार्ट करना था हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए। और इवेंचुअली फ्यूचर में जब भी ट्रैवलिंग हो या कुछ भी हो, या फिर कोई भी रीजन की वजह से अगर साइकिलिंग करना नहीं हुआ ट्रैवलिंग के दौरान या कुछ भी, तो एटलीस्ट एक फिटनेस मेंटेन करने के लिए वो स्पोर्ट रहता है, कि आपके पास एक रनिंग शूज हुए, या फिर अगर रनिंग शूज भी नहीं, बेयर फिट भी आप रन कर सकते हो। तो ये स्पोर्ट काफी मुझे सही लगा, कि जिसके से मैं अभी प्रैक्टिस इसे कर रहा हूँ। और टीएमएम तो ये साल का प्रैक्टिस की वजह से काफी अच्छा रहा, तो मेरा 1 hour and 37 minutes में हुआ, कि जो जिसके लिए तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने खुद के लिए टारगेट मैंने 100 मिनट्स का रखा था। और वो 100 मिनट्स का भी फॉर अ फर्स्ट हाफ मैराथन, या फिर समवन हु इज प्रैक्टिसिंग, उनके लिए भी ये एक अच्छा सा एक माइलस्टोन है। सब 2 hours करने का माइलस्टोन जो होता है सबका, तो मेरा भी सब 2 hours का ही था। पर जैसे जैसे टीएमएम के पहले अक्टूबर के महीने में नेवी मैराथन मैंने किया, तो उसमें मेरा 10K का काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनल बेस्ट रहा, 45 मिनट्स में मेरा वो हुआ। तो जिसके बावजूद मैंने कैलकुलेशन की, तो मेरा 100 मिनट्स से कर सकते हैं, उतना तो टारगेट करना चाहिए। तो यही जर्नी से मेरा एक पेस भी अच्छा रहा, क्योंकि एक टारगेट मैंने सेट किया था, रादर देन जस्ट कि बस दौड़ना है, बस करना है। और उसके लिए यस। फिर प्रोग्रेसिवली भी मेरा वैसा मैं विजुअलाइज करता था कि 100 मिनट में मैं करने वाला हूँ, मतलब खुद को ही मैं रोज वो चीजें रिपीट करते 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 इवेंचुअली रिजल्ट भी मेरा एक तो 100 मिनट, या तो सब 100 मिनट था, तो सब 100 मिनट हो पाया। करेक्ट। बहुत अच्छा है। और बट रनिंग की वजह से साइकिलिंग के ट्रेनिंग में इफेक्ट पड़ता था, राइट? उसका, हम्म। जैसे, तो सपोज लेट्स से आई एम ट्रेनिंग फॉर डेक्कन क्लिफहैंगर फॉर एग्जांपल, तो हम्म। मुझे साइकिलिंग पे फोकस करना चाहिए कि रनिंग पे? तो कैसे चलेगा? बिकॉज देन I- इफ आई फोकस ऑन रनिंग देन साइकिलिंग नहीं होगा। देन डेक्कन क्लिफहैंगर इज माय मेन गोल। राइट नाउ तुम्हारा गोल था टाटा मुंबई मैराथन, तो देन इट वाज ओके बिकॉज हम्म। योर गोल इज दैट। बट किसी का गोल अगर साइकिलिंग है, हम्म। जैसे डेक्कन क्लिफहैंगर फॉर एग्जांपल, तो फिर कैसे करना हम्म। चाहिए? बिकॉज रनिंग पे देन फोकस करना इज नॉट आइडियल, करेक्ट। राइट? करेक्ट। तो सब टाइमिंग के ऊपर है, और आप कब गोल सेट करते हो उसके ऊपर है। तो अभी जैसे ये मैंने गोल सेट किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो मैंने ये सेट इसलिए किया था क्योंकि जो अगला रेस में करने वाला हूँ वो है ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा, जो अगस्त में है। तो मेरे रेस तक काफी ज्यादा समय है मुझे, कि जहाँ पे मैं एक छोटा गोल या फिर एक स्पोर्ट एक पिकअप करके एज अ क्रॉस ट्रेनिंग के लिए मैं कर सकूं। और अभी जहां तक बात हुई, जनवरी का महीना है अभी, डेक्कन क्लिफ हैंगर होता है नवंबर में। सो हम्म। जब रेस, अब अभी आपके ऊपर है कि आप कब कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हो और रेस
तक कितना समय आपके हाथ में है। तो ऑफ कोर्स जब भी मेरे रेसेस आएँगे तभी, मतलब अभी जैसे मेरा ये रेस हुआ टाटा मुंबई मैराथन, इसके बाद में अभी जो भी रनिंग का जो भी मैंने गोल रखा हुआ है, मेरे सारे रनिंग के जो बड़े-बड़े रेसेस है, अभी वो सितंबर में है और दिसंबर में है। तो उसके पहले जितने भी रहेंगे वो छोटे-मोटे हुए तो इवेंट में पार्टिसिपेशन होगा कि जहाँ पे मेरा हर समय फोकस ये नहीं रहेगा कि नया पर्सनल बेस्ट सेट करते रहो। या तो फॉर द फन ऑफ इट पार्टिसिपेशन होगा, या तो फिर स्लोली स्लोली इम्प्रोवाइज करने। और बात हुई साइकिलिंग की भी, तो वो एक अभी एक बैलेंस आएगा। ये एक गोल था जो मुझे करना था, एक बकेट लिस्ट था जो मेरा टिक मार्क हुआ। तो अभी इसके बाद में और ज़्यादा मेंटेनेंस के ऊपर अभी मेरा वर्क ऑन होगा, कि ताकि मैं वापस अभी साइक्लिंग के ऊपर ये गोल होने के बाद होने की वजह से अभी साइक्लिंग पे वापस फुल ऑन फोकस पे, और रनिंग का माइलेज थोड़ा-सा और कम करने या फिर मेंटेन करने की, जिससे जो मेन स्पोर्ट है मेरा वो हैम्पर ना हो, पर साथ में बेनिफिट भी मैं लेते रह सकूँ रनिंग का। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो अभी बात करते हैं स्पॉन्सरशिप्स के बारे में। लाइक व्हाट इज तुम्हारा क्या ओपिनियन है एज ऑफ नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्पॉन्सरशिप टू अल्ट्रा साइक्लिस्ट इन इंडिया? मिलता है आसानी से, नहीं मिलता? और अगर मिलता भी है तो किन को मिलता है और क्या कर सकते हैं हम ताकि हमें स्पॉन्सरशिप मिले? सो व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दिस? बिकॉज स्पॉन्सरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम लेट्स से डेक्कन क्लिफहांगर भी अगर हम लिए, क्रूज का रेट भी अगर लेते हैं तो मिनिमम 60-70,000 तो खर्चा है ही, राइट? एंड इवन इफ लेट्स से ग्रेट हिमालयन भी अगर लेते तो वो तो लैक्स में, 2 to 3 lakhs इज द मिनिमम, बिकॉज पूरे क्रू को वहाँ लेके जाना एंड एवरीथिंग। Similarly for Ultra Spice, the Deccan Cliffhanger is the least. So what would you say about this? How can one get sponsorship, or and मिलता है कि नहीं मिलता है? And what is your thoughts on this? सो How can one approach? रेसेस का ओवरऑल आप देखने गए स्पॉन्सरशिप के लिए या फिर स्पोर्ट्स को परस्यू करने के लिए, तो स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटीज हर जगह पर है। तो वो अपॉर्चुनिटीज को टैप इन करने के लिए आपका प्रैक्टिस लेवल्स या फिर आप भी क्या टेबल पे लाते हो, और द ब्रांड विच विल बी, मतलब जो ब्रांड से आप एक्सपेक्ट करते हो आपको सपोर्ट करे, या फिर इन जनरल जब आप ओपन रहते हो कोई भी आपको सपोर्ट करे, तो उनके लिए भी आप रिटर्न उनके लिए कितना हेल्प कर सकते हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अल्ट्रा साइक्लिंग के लिए इतना आसान नहीं है स्पॉन्सरशिप अभी के लिए, तो बिकॉज अभी एकदम ग्रास रूट लेवल पे है, ऐसा कह सकते हैं। जबकि हमारे इंडिया में से भी रैम पोडियम पे रैम फिनिशेस हुए हैं, तब तो भी अभी भी ग्रास रूट लेवल्स पे ही कह सकते हैं। वही जब अगर बात आती है नेशनल लेवल रेसेस के या फिर एथलेटिक्स हुए, तो इसके लिए स्पॉन्सरशिप रिलेटिवली काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों का व्यूवरशिप होता है ये स्पोर्ट के लिए। और अगर आप अगर स्पॉन्सरशिप का अगर आपके दिमाग में होगा, कीपिंग इन माइंड द एक्सपेंस जैसा रेस का आता है, तो सबसे पहला सजेशन इसमें मेरा पर्सनल व्यू ऐसा रहेगा कि जब आप रेसिंग में जाओगे तो इसमें एक एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस के लिए आपको तो भी एक अलग से फंड्स एलोकेट करने चाहिए। और इसमें आपको भी केयरफुली डिसाइड करना है कि आपको कितने रेस साल में करना है, ताकि आप उसके लिए पूरा प्रिपरेशन कर सको। सपोर्टेड रेसेस में जैसा एक्सपेंस रेस टू रेस वेरी करता है, डेक्कन क्लिफहैंगर का रफली आप एज लो एज 50 में भी हो सकता है आपका क्रू सपोर्टेड, से लेके 1.5 2 लाख तक भी आपका खर्चा हो सकता है। तो वो सारा डिपेंड होता है कि आप बुकिंग कब करते हो, कितने जनों का क्रू है, और काफी सारे चीजों के ऊपर। पर जब तक आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना रहे, तो अनलेस एंड अनटिल कोई आपके एकदम क्लोज में रहे, तब तक वो भी स्पॉन्सरशिप का उतना उनके दिमाग में कभी नहीं आएगा। तो आपका Hmm. एक आप एक बनाओगे, आपका एक बेस बनाओगे इवेंट्स का, ट्रैक रिकॉर्ड आपका, या फिर आप जब प्लान आउट करोगे, एक आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी होगा कि कोई भी आप जिनसे सपोर्ट देख रहे हो वो आपको इन रिटर्न आप उन्हें क्या दे सको। वो अगर उतना डिलीवरेबल्स आपकी तरफ से भी उनके लिए रहे, तो कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेट को भी उनके सीएसआर फंड्स के अंडर, या फिर
आपके कंपनी भी जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, आपके वर्क प्लेस में भी उन्हें भी एक चीज रहता है कि सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उन्हें भी एज अ ब्रांड विजिबिलिटी मिलता है, उन्हें भी टीममेट हैप्पीनेस और पूरा वर्किंग कल्चर में भी काफी इम्प्रूवमेंट होता है। हम्म। तो या गुड पॉइंट्स मेरे हिसाब से। अगर इफ यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर किसी को स्पॉन्सरशिप चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एटलीस्ट फर्स्ट रेस तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यस यू कैन, हम्म। कि तुम कर सकते हो ये रेस। तो उसके लिए तो यू हैव टू पुट फ्रॉम योर ओन पॉकेट इटसेल्फ। एक बार तुम खुद को प्रूव कर लो, देन सेकेंड थिंग यू कैन डू इज बिल्ड अ गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड्स को विजिबिलिटी चाहिए होता है। सोशल मीडिया प्रेजेंस विल अट्रैक्ट देम। थर्ड थिंग you can do is community में, if people recognize you in the cycling community, then that's what people want, brands want basically, right? Because then they will trust कि अच्छा, if I give this particular person the support or the products, whatever he or she is requiring, then he or she will promote it in the community. So I think basically these three things ही है जिससे कि ब्रांड्स विल कंसिडर कि आप स्पॉन्सरशिप कि उनको मिले, कि उनको दे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में डॉक्टर अमित समर्थ इज अ वेरी गुड एग्जांपल। उनको दे गेट ही हैज गॉट लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स राइट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स लाइक इंडियन ऑयल एंड आई डोंट रिमेम्बर, बट या ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप। कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, तो अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जहाँ पर आई आस्क यू one question and you have to give either this or this as the answer. Okay? Even if you like both, you have to select any one. So first question, self-supported or supported cycling races. सपोर्टेड साइकिलिंग रेसेस। Okay. Training indoors or outdoors. इंडोर्स। Okay. Gym or bodyweight training. बॉडी वेट ट्रेनिंग। Calisthenics. Okay. Foldy cycle for cycle to work or normal hybrid cycle or road bike. फोल्डिंग बाइक। Okay. And if not cycling, running or strength training, then what's your other hobby other than cycling? Running, strength training, or something else? You can give. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। And one last bonus question. What do you like other than cycling? रनिंग। No, no, not running and strength training. That too you answered. अच्छा, सो फॉर नाउ लेटली इट हैज बीन रीडिंग टू बुक्स। अरे वाह, nice. Good, good, good. So yes, Guru the Guru, आज का पॉडकास्ट यही खत्म होता है। Thank you so much. And for all the viewers, I want to tell that Puru is open for sponsorship. So if you know anyone jo, who can support him, then definitely get in touch. Follow him on social media. And yeah. And if you have any questions, let them know in the comment section. We will try our best to answer it. So I hope ये podcast आपको useful लगा होगा. And yeah, that's it. थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट अनिश, इट वाज माय प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट एपिसोड।